All right, Maya. So we are going to start with exercise 6.2, right? But to understand exercise 6.2 of this chapter triangle, you should be very clear with this theorem that we had done in the last class, that was BPT. Can you tell me what was BPT? Basic proportional theorem. Correct. So BPT was basic proportionality theorem, right? Do you remember what was this theorem stating? The ratio of the triangles are equal. Okay. There are one condition, like there are few conditions. Let me just write down everything because second exercise is completely based on just this theorem, which is called basic proportionality theorem. Okay. So if you understand this theorem, all the questions you will find very, very simple. So let me tell you what is basic proportionality theorem. First of all, we were having a triangle, right? So if this is a triangle, and in this triangle, if we have a side which is suppose DC, a line or a side DC, which sorry DM you can say, because of course AC is already used, so you can say DE or DM. So let's write DE. So if I draw a line here DE in such a way, Manya, so that it is parallel to the base of the triangle, which is BC. That means it simply says in a triangle ABC, if there is a line DE drawn parallel to the base of the triangle BC, then that will simply imply the ratio of this, that means AD, upon DB. Okay, AD and DB, the ratio of these two, 1 second, it has taken the shape of O, AD upon DB will be equal to A upon EC. Got it? Mana, clear? This is what basic proportionality theorem states. Okay. Yes. Is there any doubt in this? No. Okay, if there is no doubt, then all the questions we can do it just by using this theorem. Also by using the converse of the basic proportionality theorem. Now, what was the converse of the basic proportionality theorem? I'll not be writing the full form basic proportionality theorem. I'll be just writing BPT. In your exam, Mana, you don't write down just BPT, you write down the complete word, okay? Now, what is the converse of the BPT? It's exactly the opposite, right? So for that, I'll Yes. draw the triangle. So first वाले case में क्या था माना that the side was parallel to the base of the triangle. तो like उसका result क्या था कि जो ratio है वो equal होगा. इस वाले केस में converse meaning उल्टा, right? So इसमें क्या होगा कि ratio same है. That means it is already given that AD upon DB is equal to, see, AD upon DB is equal to AE upon EC. Okay. If this Yes. is given, then this will imply that this line is parallel to BC. Got it? So BC, or you can write on DE, is parallel to BC. Is this clear? Yes. Yes, very clear. And now using these two theorems, we will be solving all the questions of exercise 6.2. Okay. Okay. All right. There is one more thing that we had done in the last class. 1 second, things got erased. AD upon DB is equal to AE upon EC. And then this implies simply that DE is parallel to BC, which is the converse of BPT theory. Converse of BPT. Okay. Now there is one more thing about BPT. Okay. So I said in BPT, there is one condition. For example, if I draw this triangle, this also we had done in the last class. So if we have ABC, if we have the line DE parallel to BC, then by basic proportionality theorem, that means by BPT, it states this, of course, AD upon DB. Can you tell me AD upon? Can you tell me the ratio? D upon E. Manu? D. AD D. upon DB. AD upon DB. This AD upon DB. Okay, just my screen keeps getting stopped. Just a moment. Let me reshare the screen. See, when we are talking about the BPT, we are just talking about
We are just talking about the ratio, right? They are equal, correct? So can you see my screen now? So ABC, and this is DE, right? So here it simply says if DE is parallel to BC, then by BPT, what will happen? AD upon DB will be equal to AE upon EC. Do you understand this now? Yes. This should be very clear because सारे questions बस इसी पे based होने वाला है. So this is BPT. But there is one more thing that you can do. Okay. And what is that? And that is simply that see, इसका ratio this upon this was equal to this upon this. It also means कि इसका जो reciprocal होगा, that means in some questions maybe you can also write down like this, that DB upon AB is same as EC upon AE. इसका मतलब भी सेम ही हुआ, मानो क्लियर? कैसे सेम हुआ? जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हम बाय बीपीटी और बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये भी यूज कर सकते हैं या ये भी यूज कर सकते हैं, या एक और कंडीशन है वो भी यूज कर सकते हैं. एंड दैट कंडीशन इज मान्य that AD, okay, that means this length from A to D upon not DB but complete AB. So AD upon DB will also be equal to AE upon AC. ये theorem, okay? And this also we had proved in one example in the last class. NCERT example में था जहाँ हमने वो one add किया था, वहां पे ये वाला theorem prove हो गया था. तो by using BPT मान्या, you have three things that you can use. First is of course this one, right? Second is of course this one, बस reciprocate करके हमने लिखा है. और third one जो है वो simple, the ratio of this upon the complete side is equal to this upon the complete side. Clear? Understood, Manya? Yes. Okay, now let's directly go to the questions. For that, let me share my another screen. Okay, so you can see the screen. Yes. Okay, so let's directly go to exercise 6.2 so that you can understand each and every question of exercise 6.2. And this is the question, right? So I'll just copy the first question because of course I'll not be able to solve it here. While I'm copying the question, can you just read the question, Anya? In figure 6.17, first and second DE parallel BC, find EC in the first and AD in the second. Correct. So you can see that there are two questions given, question number 1 and question number 2, right? So let us first solve question number 1, right? Okay, 1 second. Let me share. मान्या, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, right? There is no doubt till now. Yes. Okay. So first question in figure 6.17, question number 1. DE is parallel to BC, right? So how will you write it in your board exam? That is also, I'm keeping in mind, Manya. इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना. Okay. So in Okay. triangle, this is how you have to start. In triangle ABC, right? हमारे पास triangle कौन सा है? ABC, the big triangle, right? ABC. Okay. So in this triangle, what is given? So write down given. What is given according to you, Manya? In this triangle, what is given? Something is parallel. DE Yes, write down parallel that. BC. Correct. D is parallel to BC, right? In this triangle, it is given that DE जो है वो BC के parallel है. तो by BPT theorem or by BPT, which you will not be writing just BPT, मान्य, again I'm reminding you, आप पूरा लिखना, basic proportionality theorem. So by BPT, what can you write? अभी हमने इतने बार डिस्कस किया वो theorem. Can you tell me what can we write? कौन सा रेशियो इक्वल होता है? द मेन वन, एडी अपॉन डीबी. DB. AD upon DB, not AE.
right? See, वही वाला same line, Manya, right? AD upon DE will be equal to what? Now you can tell me. Will be equal to? Will be equal to AE. AE upon AC. Correct. AE upon EC. There is any doubt in No. this? No doubt, right? Okay. अभी let's read the question again. Question में क्या दिया हुआ है कि हमें क्या find करना है? We have to find EC in question number 1 and AD in question number 2. Let's talk about AD later on. First हम देखते हैं हमें EC find करना है, right? That means हमें ये length find करना है जो कि नहीं दिया हुआ, correct? But can you tell me question में AD का length कितना है, मानो? 1.5. Very good. So put 1.5 upon what is DE? How much is DE? Sorry, have I written DE here? Yes, it will be Think so. DB. Yes, very good. Very good. Of course, that is by mistake. So 1.5 upon 3, right? Is equal to, 3. yeah, is equal to what is AE? 1. 1. So write down 1. EC कितना है? पता नहीं, because हमें find करना है वो, right? Manya, we have to find EC. Is this not very simple for you to solve? What will you do? Tell me. First, we will shift the term. Will shift what? We want to find out EC. So don't you think ये जो EC denominator में यहाँ divide हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड shift करके multiply कर दे so that ये numerator में आ जाए? Yes. Which is also called a cross multiplication. So यहाँ पे 1.5 ऐसे ही रहने देते हैं, इस EC को यहाँ पे multiply कर देते हैं. Are you understanding? Okay, Yes. and then upon 3 और is equal to 1 कर देते. Got it? अभी हमें EC फाइंड करना है, माना इट इज लाइक ए लीनियर इक्वेशन ओनली. तो अब इस 1.5 into EC को यहीं पे रहने देते हैं और ये जो 3 है उसको दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं. सो ऑफ कोर्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज़ 3 times 1 will be 3, राइट? अभी व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड EC, राइट? सो EC को यहीं रहने देंगे और ऑफ कोर्स 3 is as it is. What will happen to 1.5? Minus 1.5. Minus. वहां पे वो No, multiply divide. right? So 3 upon 1.5. Next, इसको आप solve कर सकते हो मानो? Yes. Do you know how to solve? How will you solve this? What will you do with the decimal? How will you remove the decimal? We will What remove will the decimal and put 0 in numerator. Very good. So what is your answer now? Your answer is EC is equal to the length that we have to find. That is 30 divided by 15. What's the answer? 10 upon 5. Can you not do 15 times 1 is 15 and 15 times 2 is 30 directly, Manu? Yes. Right? So हो गया. Done. We are done with the first question. EC का answer आ गया 2 centimeter. Got it? Yes. You answered the first question. Let's go to the next question now. So for the next question, of course, we will be looking at the second figure, right? So Manya, let me tell you that second question is exactly similar to the first question. So will you tell me first what should I write? Now we are doing the second question. Tell me. We will write AD upon DB. First you will write down the given information. What is given? इसमें भी यही information given है, right? दोनों Yes, के yes, लिए yes. confirm. So write down given. DE is parallel. DE parallel to BC So by using by using BPT. very good. Just ये use करके हम सारे questions solve कर लेंगे exercise 6.2 के. Okay, so tell me by using BPT what? AD AD upon upon DP. very good equals AE very good. Yes, upon yes. EC. That's correct. Manya, see, just in the second question, you are confident. Now imagine 3, 4, 5th will be doing it, so you'll understand this particular topic very properly. Now tell me, what do we have to find in the second question? Did you read the question? In the second question, what we had to find? We had to find the length of AD. See,
correct? Which is this part we have to find. So can you tell me what should I do in the next step? Yes. Tell me. Now we will put value. AD will be remain same as AD. Okay. And DB will be 7.2. Correct. Equals. Equal to AE will be 1.8. Very good. And EC will be 5.4. That's correct. Tell me. Next. Now we will shift the term. Now we have to find AD, so of course you can do it. So tell me, what should I do? AB into 5.4. Okay. Can you not do this, Manya? See, that is also okay that we can do. But will you not remove the decimal quickly and your answer will be just 18 by 54? Yes. Right? Okay. Do you know that we have 54 in the table of 18? Do you know that, Manya? No. Check. What is 18 times 3? Check. Just a moment. So 18 times 1 is 18. 18 times what is 54? That you check and tell me. 18 times 3, right? Check. Yes. 18 is 54. So see, our answer becomes so, like simplified, right? Very simplified, you can say. So AD upon 7.2 is equal to 1 upon 3. Clear? Right? Next Yes. step, Amya, what should I do now? Because we have to find AD. AD will be remain as AD equal 1 upon 3 into 7.2. 7.2. Very good. Next, can we not write down this as AD is equal to what is 1 into 7.2? 7.2 upon 7.2 3. upon 3. Yes. Now tell me, how will you simplify Now this? we will remove the decimal from the numerator and put the 0 in denominator. Very good. You are doing this. Good. Okay. Now, how will you simplify this? 72 divided by 30. If you want, you can simplify also by 6. It will come in the table of 6. Of course, check. We can simplify like 6 times 5 is 30. Do you understand when I'm doing like this, Manya? You understand this part? 6 times 5 is 30. Now 6 times what is 72? So 6 times 12 is 72. Right? So what is the answer? AD is, I hope you can do this part on your own. There is any doubt in this part, Manya? No. Okay. AD is 12 by 5. Can you tell me what is 12 by 5 in the decimal form? That we will write down in the answer. This is also very simple. It is like 12 divided by 5. So I have the answer, but can you do this and tell me? 12 divided by 5 in the decimal form. Yes, just a second. Yes. You can use long division also. Five times 5 times 2 is 10, right? You must have done, correct? इसके बाद फिर इसको subtract करेंगे, correct? 12 minus 10 is of course 2. And then we put a decimal because we want to find out the answer in the decimal. And we are allowed to put a 0, correct? Yes. Right? You understand this. Is there any doubt in this part? No. Okay, so now tell me, 5 times what is 20? You will get your answer. 5 times 4 is 20. And that's it. We are done. The answer is
Yes, the answer is 2.4 centimeter, and we are done. This is what we wanted to find. AD is equal to 2.4 centimeter. Did you understand the first question properly, Manya? Just using BPT, we got the answer. Correct? Yes. Can we go to the next question now? Yes. Okay, let's go to the next question. So this is our next question, right? You can see, I'll read the question. Second question says, you may feel like, oh, this looks so difficult. This is so big, right? So many things are given. But trust me, Manya, just by using BPT only, we have to solve this. And this is a very, very simple question, okay? Let's understand this. E and F are the points on the sides PQ and PR, respectively on of a triangle PQR. Okay, so I think this question is not having this figure, I guess. Just a moment. Oh yes, this is not for this question. I'll just erase the picture. This question is, this figure is for question number 3. Okay, 1 second. Yeah. So you don't have to look at this picture. This is not for this picture. Okay, this picture is for question number 3, which we have not started yet. So we will just draw the triangle. Okay, it says there is a triangle PQR. Let's draw the triangle here. So we have our triangle PQR, PQR, right? Then it says E and F are the points on the side PQ. So there is a point E on the side PQ, Manya, understanding? And there is a point F on the side PR, correct? So E Yes. and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, you have to check whether EF will be parallel to QR or not. That means, of course, this EF should be joined, right? And it is just asking you that for the first condition, whatever is given, for the first condition, whether EF will be parallel to QR or not. For the second condition, same thing. For the third question, same thing, right? So this question is based on the converse of the BPT, if you can notice, Manya, right? Because यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है या नहीं. Are you Yes. understand? तो यहाँ पे अगर हमारा रेशियो ऑफ PE अपॉन EQ अगर PF अपॉन FR के सेम आ जाता है तो वी आर डन. वी विल से दैट EF इज पैरेलल टू QR. तो ये हमें बस चेक करना है. तो पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या रेशियो लेंगे, मान्या? ऑफ कोर्स हम लोग रेशियो लेंगे PE अपॉन EQ. कैन यू टेल मी व्हाट इज PE अपॉन EQ? What is PE in question number 1? 3.9. Yes. Correct. And what is EQ in question number 1? 3. 3. So what is 3.9 upon 3? I'm unable to write it. Can you solve this? 3.9 upon 3. I'm resharing the screen. My screen got stopped again. So you just have to tell me 3.9 upon 3 को अगर simplify करेंगे तो क्या आएगा? फिर हम दूसरे वाले साइड का रेशियो भी चेक कर लेंगे. अगर वो दोनों रेशियो सेम आ जाता है then we are done. So P upon EQ that means 3.9 upon 3. कैसे simplify करना है माने? You know this. इस डेसिमल को हटा के 0 पुट करेंगे, right? So अभी 39 और 30 को आप simplify करो and tell me what are you getting. उसके बाद हम, तो that is 3.6 upon 2.4. ओके, पहले हम 39 अपॉन 30 को सॉल्व करते हैं माना. सो कैसे सॉल्व करेंगे? ऑफ कोर्स ये 3 के टेबल में 10 और ये 3 के टेबल में 13. यस और 1.3. वेरी गुड, दैट इज करेक्ट. सो इट इज 1.3. ये रेशियो आया है. यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखना है मान्या. ओके, रेशियो जो होता है वो हमेशा यूनिटलेस होता है. क्यों? बिकॉज इट इज लाइक 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर. तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल होंगे ना. गॉट इट? तो इसलिए रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं लिखता है बिकॉज रेशियोज आर ऑलवेज यूनिटलेस. सो अभी मान्या लेट्स सॉल्व दिस. सो यहाँ पे का तो पॉइंट डायरेक्ट हम हटा देंगे. 336 अपॉन 24 हो जाएगा, राइट? तो ये 36 और 24, डोंट यू थिंक कि ये 6 के टेबल से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? Yes. 6 times 6 is 30. ये सब आप कर लोगे मान्या, राइट? देयर इज नो डाउट इन दिस पार्ट, करेक्ट? Yes. ओके, सो 6 times 6 is 36, 6 times 4 is 24. अभी हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 times 3 is 6, 2 times 2 is 4,
what is the answer? Tell me, 3/2 को अगर हम simplify करते हैं in the decimal, can you tell me what is the answer? आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में कोई भी डाउट है माने? नो। ओके, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन स्टॉप मी, आई विल एक्सप्लेन। वो कितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग। So tell me, what is 3/2 in the decimal form? 1.5। Very good. So आप बताओ मान्या कि जो PE अपॉन EQ है वो वैल्यू आया है 1.3 और जो PF अपॉन FR है वो वैल्यू कितना है 1.5। आर दे सेम मान्या? यस। 1.3 and 1.5 are same. नो नो नो। No, they are of course not same. This is 1.3, this is 1.5. 1.5 is bigger than 1.3. So ये दोनों रेशियो क्या सेम हुआ, इक्वल आया? नहीं, ये नॉट इक्वल आया। तो अगर ये रेशियो ही अनइक्वल आ गया है तो क्या वो लाइन दोनों पैरेलल होंगे माने? नो। नो, बिकॉज ये तो थ्योरम ही नहीं बोल रहा था। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था कि वो रेशियो अगर सेम आया तो लाइन पैरेलल होंगे, और बीपीटी क्या बोलता था कि अगर लाइन पैरेलल हुआ तो रेशियो सेम होना चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ हम कॉन्वर्स से चेक करना चाह रहे थे कि वेदर लाइन विल बी पैरेलल और नॉट। ऑफ कोर्स लाइन विल नॉट बी पैरेलल। सो फर्स्ट केस में ये लाइक द क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर और नॉट। फर्स्ट केस में ईएफ इज नॉट पैरेलल टू क्यूआर। ये रहा हमारा आंसर, ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। गॉट इट? यस। Right, now let's solve for the second case, right? So second case में भी क्या करेंगे, सेम PE upon EQ और QE, सेम थिंग, राइट? सो उसमें भी हम रेशियो फाइंड करते हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज PE upon QE? What is PE? 4. What is QE? That means what is this value? 4.5, right? यस। ओके, अभी इसमें क्या करेंगे, डेसिमल को हटा के 0 पुट करेंगे। सो इट इज Yes. 40/45। कौन से टेबल से जाएगा ये? ऑफ कोर्स 5 से हटाता है। 5 times 8 is 40, 5 times 9 is 45। सो क्या आया? रेशियो 8/9। लेट्स राइट डाउन द रेशियो ओनली माने, ओके, लेट्स नॉट कन्वर्ट इट टू द डेसिमल फॉर्म। सो ये 8/9 आया। ओके, लेट्स चेक द अदर रेशियो, दैट मींस PF अपॉन RF। RF is same as FR, so you can write down directly PF upon RF. Now tell me, what is PF? PF is 8. What is RF? RF is माना, RF is 9, right? तो अभी आप बताओ मान्या कि ये रेशियो सेम आया क्या? Yes. So therefore you will write down, since this is the symbol of since PE upon QE is same as PF upon RF, this implies what? You will write down, therefore by converse, you have to write down this manya, okay? By converse of BPT, the basic proportionality theorem, what this will imply? This will imply that EF is parallel to QR. माने आपको प्रॉपर समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कोई डाउट नहीं है इसमें? पक्का? Yes. Okay, let's go to the next question, the third one. Okay, अभी थर्ड में हमें सेम चीज करने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ऑफ कोर्स आपने किया सॉल्व। थर्ड वाला, कैन यू सॉल्व इट कंप्लीटली ऑन योर ओन, वेयर यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट डू आई हैव टू राइट, दैट्स इट। ठीक है माना? ओके, सो लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के लिए आई विल जस्ट डू वन थिंग, आई विल राइट डाउन। ओके, सो सी, वो फिगर तो नहीं देखना बिकॉज ऑफ कोर्स ये फिगर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ओके, सो थर्ड वाले केस में ऑफ कोर्स क्या करना होगा चेक। फॉर दैट लेट मी जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल क्विकली। वी हैव PQR, राइट? PQR, और हमारे पास E और F पॉइंट था, सो E एंड F, और ऑफ कोर्स EF जो है वो एक लाइन है। सो थर्ड वाले केस में क्या है, PQ की वैल्यू दी हुई है मान्य, राइट? ओके, थर्ड वाले केस में, या थर्ड वाले केस में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट वी कैन सॉल्व इट। PQ इज गिवन 1.28, राइट? और जो PR है, ओके, PR जो है वो है 2.56, राइट? Yes. PE की वैल्यू कितनी है?
0.18 0.818 0.18 और पीएफ की वैल्यू कितनी है? 0.36 राइट, ओके। सो यहाँ पे मान्या, डू यू रिमेम्बर कि बीपीटी थ्योरम, व्हाट वाज बीपीटी थ्योरम स्टेटिंग that if PE upon EQ will be same as PF upon FR, then EF will be parallel to QR, right? बट यहाँ पे हमारे पास EQ की तो वैल्यू नहीं है, ना ही FR की वैल्यू है, राइट? तो कैन यू डू वन थिंग, ये जो EQ पार्ट है, इस EQ का वैल्यू क्या हम इस पूरे PQ से अगर PE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डोंट यू थिंक कि हमारे पास EQ की वैल्यू आएगी? डू यू अंडरस्टैंड दिस, माना? Yes. सी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन। अगर हमें इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, राइट, अगर हमें इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम ये पूरा लेंथ, जो भी पूरा लेंथ है विच इज पी क्यू, इसमें से अगर हम सिर्फ ये पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे ग्रीन वाले पार्ट से, अगर रेड पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये पार्ट आएगा विच इज द येलो पार्ट, और इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस, माने? Yes. Yes, okay. So let's just write down this. So अभी हम सबसे पहले EQ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. So what will be EQ? EQ will be simply PQ minus PE. PQ की वैल्यू क्या है? PQ की वैल्यू है 1.28 माइनस PE की वैल्यू क्या है? 0.18. So what will be the answer? अभी अगर 1.28 को हमने 0.18 से सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज सो सिंपल टू सब्ट्रैक्ट, राइट? 8 minus 8 is 0, 2 minus 1 is 1, and 1. then 1. So what is the answer? 1.10, which is same as 1.1 only, right? Because we normally don't write 0 at the end. ओके, EQ की वैल्यू मिल गई, अब PE का वैल्यू ऑलरेडी था और EQ भी मिल गया, तो ऑफ कोर्स अब हम रेशियो चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हम FR भी निकालेंगे, मान्या। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. क्यों हम इतना कुछ कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू चेक बाय द BPT theorem only, okay? So Okay. this was 1.1, right? Abhi let's I'm find. not able to see your screen. Okay, one second. I did not share the screen. Oh, okay. You are not, am I not in the meeting? I'm in the meeting, right? Yes, But you are. unable to share the screen. Okay, let me just join the meeting again because I'm just not able to share the screen. Just a moment. So मैंने अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया, जितना कुछ डिस्कस किया, वो सब कुछ क्लियर है माने, Hmm. या डाउट है? टेल मी। कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ी थोड़ी। कंफ्यूजन? ओके, सो माने कौन से पार्ट में कंफ्यूजन है? कैन सी, हम जस्ट बीपीटी थ्योरम ही चेक कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में, बट अगर किसी भी जगह पे कंफ्यूजन हो रहा है मान्या, यू कैन स्टॉप मी एंड क्लियर दैट आउट, राइट? यस, अभी आप Yes. कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपने बता दिया, लेट्स डिस्कस दैट. Let me just join the meeting. I don't know why, but I somehow, I guess, left. Okay. Now I'll share. Okay, can you see my screen now? Yes. Yes. Okay. Question number 1 में कोई डाउट था? नहीं. Question number 2 में क्या डाउट है? Tell me. Question number 2 का पहला वाला क्वेश्चन क्लियर था? Yes. ओके, पहला और दूसरा आई थिंक दोनों क्लियर था, डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है, राइट? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन उसमें. डाउट आ रहा है ना कि व्हाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग, व्हाई आर वी डूइंग दिस, करेक्ट? Yes. ओके, सो एक काम करती हूँ मैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट मान्या, राइट? हम क्वेश्चन नंबर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चेक करना है, जस्ट टू कंफर्म कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। हम सीधा यही चेक करने वाले हैं, रेशियो, दैट मीन्स PE अपॉन EQ का रेशियो और PF अपॉन FR का रेशियो, राइट? अगर वो सेम आ जाए तो,
नाउ टेल मी मान्या, पीई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? पीई की वैल्यू क्या है? 0.18. वेरी गुड, 0.18। अभी नाउ यू टेल मी ईक्यू की वैल्यू क्या है? EQ. ईक्यू दिया ही नहीं है, नहीं राइट? दिया. Yes. तो वही हम कर रहे हैं मान्या, क्योंकि वो दिया ही नहीं है तो हम वो फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो वो सब्ट्रैक्ट करके। और वो सब्ट्रैक्शन आई गेस आपको क्लियर नहीं हो रहा है, राइट? कि वो सब्ट्रैक्ट कैसे कर, Yes. या फिर वो क्लियर है? नहीं क्लियर। ओके, सी मान्या, सपोज आपके पास ये एक लाइन है, ओके, आई मेक यू अंडरस्टैंड। ये एक लाइन है आपके पास, इस लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। मतलब सपोज ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और ए एक पॉइंट है सी, और ए सी का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। सो मान्या, आप सी बी का लेंथ बता सकते हो कितना होगा? यू 3 अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सी बी? दैट इज माई क्वेश्चन। सी ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए बी का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC का लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। माई क्वेश्चन इज CB का लेंथ कितना होगा? 4 centimeter. बट डोंट यू थिंक अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 + 4 होके 7 होगा, 8 होना चाहिए। सो क्या रॉन्ग है फिर? क्या होना चाहिए 4 की 5. जगह? 5। सो ये 5 कैसे आया मान्या? डू यू नोटिस कि ये जो CB का लेंथ हमने फाइंड किया, वो एक्चुअली हमने AB और AC को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड किया, यस और नो? Yes. किया, करेक्ट। ए बी जो 8 था और AC 3 था, और उससे हमें सीबी का लेंथ मिला 5 सेंटीमीटर। मान्या, सेम थिंग हम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ भी हमें जो ये EQ का लेंथ फाइंड करना, बिकॉज हमारे पास EQ नहीं है, तो ये EQ का लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? ये पूरे PQ में से अगर PE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या ये लेंथ नहीं मिल जाएगा? सेम जस्ट लाइक वो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया। यस और नो? अभी Yes. अभी क्लियर हुआ मान्या, या अभी भी क्लियर नहीं है? टेल मी, अगर क्लियर नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगी। Yes, it's clear. इट्स क्लियर, ओके। यू कैन बी 100% ऑनेस्ट हियर मान्या, कि अगर नहीं समझ में आया दूसरी बार तीसरी बार, जस्ट टेल मी कि नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वापस आपको किसी दूसरे तरीके से समझाऊंगी। तो जस्ट टेल मी कि ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है? Yes. यस, ओके। सो अभी हम EQ वही हम यहाँ पे कर रहे थे मानना, तो मैंने क्या किया, पहले ये स्टेप करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आई गेस पहले मुझे ये वाला करना चाहिए था और वहां दिखाना चाहिए था कि EQ नहीं है। और EQ नहीं है तो हम EQ फाइंड करेंगे, और वही EQ हम यहाँ फाइंड कर रहे थे बाई सब्ट्रैक्टिंग PQ एंड PE। तो PQ का लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.28, और PE जो कि 0.8, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1.1 आया। अभी ये 1.1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। गॉट इट? अभी हम यहाँ पे 1.10 ही लिखते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो 1.10। क्लियर माने? Yes. नाउ PF अपॉन FR। सो PF की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? कैन यू चेक? 0.36 centimeter. 0.36, ओके, अपॉन FR की वैल्यू कितनी है? ये FR की वैल्यू कितनी है? नहीं है। और तो है ही नहीं. FR है ही नहीं, तो FR कैसे फाइंड करेंगे? माने आप बताओ, FR को फाइंड करने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे और किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? एफ PF my PF और PR। PR PR minus minus, PF very good. Now tell me, what is PR in the question? 2.56 minus, 2.50. what is PF in the question? 0. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर होगा मान्या? लेट्स डू इट हियर ओनली। 2.56 minus 0.36, what will be the answer? 6 minus 6 is 0. 5 0. minus 3 is 2. 2 minus 0 is 2. So what is the answer? 2.20। वही 2.20 को हम यहाँ लिख देंगे मान्या। क्लियर? Yes.
ओके अभी हम इसको चेक करते हैं रेशियो को। तो इसका पॉइंट जो है वो हटा के इसका पॉइंट हटा सकते हैं, राइट? सो क्या आंसर होगा? 018 विच इज 18 ओनली अपॉन 110, राइट? और यहाँ पे Yes. वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम वही डेसिमल हटा देंगे क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 220, करेक्ट? माने Hmm. टेस्ट दैट ये दोनों फ्रैक्शंस एक्चुअली सेम है। लेट्स चेक। ओके, सो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 टाइम्स व्हाट इज 36? 2 टाइम्स इफ यू चेक 18 इज 36, यस और नो? Yes. If you want, you can check also. So 2 times 1 is 2, 3 minus 2 is 1, 6, and then 6, 2 times 8 is 16. See, we got the answer, 18 only. So 2 times 18 is 36. Now 2 times what is 220, Manya? You can directly solve. 2 times 1 is 2, 2 times 1 is 2, 2 times 0 is 0. So can you see कि वो रेशियो भी 18 upon 110 है और ये वाला भी 18 upon 110 आ रहा है. So you don't even have to simplify this further. You will directly write down now. Since the ratio has come same, that means since PE upon EQ is equal to PF upon FR, so by the converse of BPT, you are understanding when I'm writing this theorem by converse? क्यों कॉन्वर्स? क्योंकि हम उल्टा प्रूव कर रहे हैं। बीपीटी थ्योरम ये बोलता है कि जब वो लाइन पैरेलल है तो वो रेशियो इक्वल होगा, बट ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है मान्या कि अगर वो रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो इक्वल आया, तो ऑफ कोर्स वो उल्टा हुआ बीपीटी थ्योरम का। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग कॉन्वर्स। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी व्हाट विल दिस इंप्लाई? दिस विल सिंपली इंप्लाई कि वो लाइन पैरेलल है। EF is parallel to QR. Done. Understood the question now? Yes. See, Manya, why did we not go fast here? Because अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बाकी के क्वेश्चन दिक्कत होंगे, बट अगर ये दोनों क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया तो बाकी का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। ओके, सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes. Okay, so for the next question, Mane, I'll take you to the NCERT book so that वहां पे समझ में आएगा. So you can see question number 1 and question number 2 are done. Let's solve question number 3. So for question number 3, it says in figure 6.18. See, so ये 6.18 जो figure था, ये वाला, ये question number 3 के लिए. Okay. In this, it says, Manya, if LM is parallel to CD, ये line जो है, वो CB के parallel दिया हुआ है, given है. Okay. And then there is another case. LN is also parallel to CD. LN जो है, वो CD के पैरेलल गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो AM अपॉन MB और ये जो AN अपॉन वन सेकेंड, AM अपॉन AB, नॉट AM अपॉन MB, बट AM अपॉन AB एंड AN अपॉन AD, इसका रेशियो जो है वो सेम होगा। ये प्रूफ करना है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन माना है। मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ सो दैट यू कैन जस्ट understand what is happening. Okay, so Manya, can you see that ये जो figure है 6.18, इसमें दो triangle है? Yes. Yes, पहला triangle ये वाला ABC, ये एक पहला triangle है. So let us Yes. start with ABC triangle. You can also write down along with me on in your notebook. Okay, so ABC triangle में मान्या कौन सा लाइन किसके पैरेलल है गिवन क्वेश्चन में? कैन यू रीड इट? ये जो ABC ट्राइंगल है उसमें एक लाइन जो है वो दूसरे बेस ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है. कैन यू जस्ट रीड दैट एंड टेल मी? LM parallel CD. Yes, very good. So you'll write on in triangle ABC, LM is parallel to BC. ये जो है ये गिवन है, राइट? बट अगर LM जो BC के पैरेलल है मान्या, तो बाय BPT थ्योरम व्हाट विल यू राइट डाउन? टेल मी. By BPT theorem, what will you write down? Will you not write down AM upon MB will be equal to AL upon LC? Right? Yes. ये ट्राइंगल में
अगर LM जो है वो BC के पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स ये रेशियो अपॉन ये रेशियो विल बी सेम एज दिस रेशियो अपॉन दैट रेशियो, करेक्ट? बट Yes. इफ यू रिमेम्बर मान्या, मैंने जब BPT थ्योरम हमने जब रिवाइज किया, तो हमने BPT थ्योरम का एक और भी स्टेटमेंट किया था, एंड दैट वाज दिस। सी, हमने BPT थ्योरम का ये वाला भी कंडीशन रखा था कि अगर DE जो है वो BC के पैरेलल होता है, अगर ये जो DE है वो BC के पैरेलल होता है, तो एक और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, विच इज ये AD अपॉन AB विल ऑल्सो बी इक्वल टू AE अपॉन AC। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी, दो BPT थ्योरम दो चीज बता रहा है मान्या। एक तो ये जो ट्राइंगल है, इफ आई ड्रॉ इट अगेन, सेकेंड। सी, BPT थ्योरम दो चीज करता है मान्या। एक, अगर ये ट्राइंगल ABC है एंड ये DE है और ये पैरेलल है, तो इट इम्प्लाइज टू थिंग्स। पहला, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। और एक और स्टेटमेंट होता है दैट AD अपॉन कंप्लीट AB, AD अपॉन कंप्लीट AB विल बी ऑल्सो इक्वल टू AE अपॉन कंप्लीट AC। इनका रेशियो भी सेम होता है। मान्य ये थ्योरम है, इसमें आपको कुछ भी समझना नहीं है, जस्ट आपको ये थ्योरम ध्यान रखना है। तो ये थ्योरम यूज करके वी आर गोइंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन। ओके मान्य, क्लियर? Okay. यस। सो इन ट्राइंगल ABC, अगर LM जो है वो BC के पैरेलल है, तो बाय यूजिंग BPT, सेकंड जो मैंने भी डिस्कस किया, बाय यूजिंग BPT, कैन यू नॉट राइट डाउन AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC? यस और नो? Yes. राइट? यू मस्ट बी वंडरिंग कि कैसे पता चला कि यहाँ पे AM अपॉन AB लेना है, या लाइक और AM अपॉन MB वाला नहीं लेना है। जस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रूव करना है ना मान्या, उसमें AM अपॉन AB मैंने देखा, इसलिए मैंने वो वाला स्टेटमेंट ले लिया। अगर यहाँ पे होता है कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND प्रूव करना है, तो फिर मैं वो फर्स्ट वाला लेती, बट बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में वो दिया हुआ, इसलिए हमने दूसरा वाला लिया। क्लियर? यस। अभी इसको आप एक इक्वेशन 1 पुट कर दो। ओके, दूसरा मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ बिकॉज स्पेस यहाँ पे है। ओके, सो अभी दूसरे के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ACD। ओके, सो लेट्स राइट डाउन नाउ इन ट्राइंगल ACD। ओके, अभी ACD में क्या गिवन है? In the question it is given that LN is parallel to CD. So can we not write down LN is parallel to CD is the given information? So abhi again by using BPT second wala bhi, can we not write down? Manya, can you tell me what should I write? By using BPT second wala jo BPT tha, not the converse but the second case of BPT, what should I write? Are you understanding, Manu? Yes. Yes. So इस वाले ट्राइंगल में बिकॉज LN जो है वो BCD के पैरेलल है, तो इसका मतलब AN अपॉन AD, राइट? AN अपॉन AD इसका रेशियो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? AL अपॉन AC के। यस और नो? Yes. सो इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर देंगे मान्य। ओके, अभी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर x इज इक्वल टू y आया है, ओके, और x इज इक्वल टू 2 आया है, ओके, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पे कैन यू से कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये बोल सकते हैं कि y की वैल्यू भी 2 है? यस और नो? कैसे 2 है? बिकॉज ये LHS सेम था, तो ये जो RHS होता है वो सेम हो जाता है मान्य, करेक्ट? सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। इफ यू नोटिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान्य, ये AL अपॉन AC दोनों ही राइट साइड में सेम है, तो what will imply, what equation 1 and equation 2 will imply, that जो LHS है वो भी आपस में सेम हो गए। So you can directly write down, therefore from equation 1 and 2, what this implies, that AM upon AB
is equal to an upon ad and hence proved. ये प्रूफ समझ आया मान्या या नहीं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, पूरा क्लियर नहीं हुआ? नहीं। ओके, क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें, कैन यू टेल मी? ये ट्राइंगल जो है बस वो सीधा ही दिख रहा है, राइट मान्या? ये यस। triangle जो है ये बस उसमें उल्टा दूसरे एंगल में है। अदरवाइज क्वेश्चन तो वही हो रहा है मान्या, इफ यू नोटिस क्वेश्चन वही है। लेट मी शेयर माय अनदर स्क्रीन, लेट मी एक्सप्लेन यू, बिकॉज अगर ये वाला नहीं समझ में आएगा मान्या तो आगे ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। ओके, so let me share my screen and let's do this question again, बिकॉज ये जब क्लियर हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सिंपल लगेंगे, बट अगर ये ही क्लियर नहीं है तो आगे के क्वेश्चन भी सिंपल नहीं लगेंगे। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? यस। ओके, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ नहीं है ये, ऑफ कोर्स या। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लेट मी फर्स्ट टेल यू कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में ये था कि ये जो LM है, राइट, this LM, what is given in the question? Given in the question is कि LM is parallel to BC and LN is parallel to CD. ये given है क्वेश्चन में। ओके, हमें यस। प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूफ क्या करना था माना? AM अपॉन AB का रेशियो AN अपॉन AD के इक्वल होगा। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो LM जो BC के पैरेलल दिया हुआ है मान्या, वो कौन से ट्राइंगल में दिया हुआ है? ऑफ कोर्स इस ट्राइंगल में, यस और नो, राइट? यस। So if you want, you can write down that triangle. So in triangle ABC, right? जो ABC ट्राइंगल दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे खड़े होके इस ट्राइंगल को देखो तो ऑफ कोर्स ये ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC। उस ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है LM is parallel to BC, right? LM is parallel to BC। अगर एक ट्राइंगल में ये साइड जो है वो बेस ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल होता है तो बाय यूजिंग बीपीटी मानिया व्हाट कैन यू राइट? सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बीपीटी थ्योरम पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो अभी बीपीटी थ्योरम यूज करके व्हाट कैन यू राइट? विल यू नॉट से कि AM अपॉन MB विल बी सेम एज AL अपॉन LC? विल यू नॉट से दैट? यस। Yeah, you will say that because that is what BPT theorem states. But हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम एक और जो दूसरा है वो वाला यूज करेंगे। रीजन क्या है? रीजन है कि प्रूफ में क्वेश्चन वैसा दिया हो। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या बोलता था मान्या? दैट AM अपॉन AB का रेशियो जो है वो सेम होगा AL अपॉन AC के। ये भी बीपीटी ही है मान्या। ओके, दिस इज द सेकंड बीपीटी, वो वाला फर्स्ट थ्योरम था। ओके, बट स्टिल यू विल राइट ऑन जस्ट बीपीटी ओनली। सो बाय यूजिंग बीपीटी कैन आई नॉट राइट डाउन द सेकंड थ्योरम व्हिच वाज AM अपॉन AB विल बी इक्वल टू AL अपॉन AC? अभी क्लियर हुआ मान्या? यस। यस, अभी इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट we will write down now in triangle ACD, let me erase everything so that you can understand। अभी हमारा वो ट्राइंगल का काम हो गया, वो ABC जो ट्राइंगल है वो हो गया। अभी विल टॉक अबाउट ट्राइंगल ACD। क्लियर? सो इन ट्राइंगल ACD मान्या, कैन यू टेल मी क्या गिवन है क्वेश्चन में? कौन सा लाइन पैरेलल गिवन है इन ट्राइंगल ACD? व्हाट इज गिवन पैरेलल? दिस ए। इज नो, पैरेलल गिवन है, पैरेलल गिवन। सी मान्या, हम हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है
कि एसीडी ट्राइंगल में एलएन जो है वो सीडी के पैरेलल गिवन है। यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. तो अभी हमने ये थ्योरम, सी व्हाट इज बीपीटी थ्योरम? बीपीटी थ्योरम इज वेरी सिंपल, कि अगर एक ट्राइंगल में ये जो साइड है, बीच का साइड जो ड्रॉ किया हुआ है, वो ट्राइंगल के बेस से अगर पैरेलल गिवन होता है, तो बीपीटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं AL अपॉन LC विल बी इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, ये फर्स्ट बीपीटी थ्योरम था। सेकेंड बीपीटी थ्योरम भी एक था, विच इज AN, that means this length upon the complete length, right Manya? You are understanding? ये फॉर्मूला है, आई एम नॉट यूजिंग दिस आउट ऑफ द बॉक्स, ये फॉर्मूला ही है, दो फॉर्मूला था। AN अपॉन ND will be equal to AL upon LC and AN upon AD will be equal to AL upon AC. You understood this now, right? इस Yes. वाले को हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ओके? Now there is one thing that you should understand here, कि ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में है, इक्वल के लेफ्ट साइड वाले को हम LHS बोलते हैं और इक्वल के राइट साइड को RHS बोलते हैं। डिड यू नो दिस मैंने? Yes. राइट, सो इस इक्वेशन 1 में पता है क्या आया है? ये जो LHS है वो RHS के इक्वल आया है, राइट? यहाँ भी जो LHS है वो RHS के इक्वल है, राइट? बट यहाँ का जो RHS है, फर्स्ट इक्वेशन का जो RHS है विच इज AL अपॉन AC, वो इस इक्वेशन के RHS के साथ सेम है, सेम एग्जैक्ट सेम है, राइट? AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। तो जब हमारे पास दो इक्वेशन हो और उस दोनों इक्वेशन को या तो LHS सेम हो या तो RHS सेम हो, तो उसका दूसरा वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। दिस इज अ रिजल्ट मान्य, ओके? दिस इज, यू कैन से कि ये एक वे है आंसर करने का, कि यहाँ पे RHS सेम है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट राइटिंग एनीथिंग कि LHS भी आपस में सेम होगा, क्योंकि RHS सेम है। So AM upon AB will be equal to AN upon AD from equation 1 and 2, and you can see कि यही तो प्रूफ करना था हमें, hence proved। अभी ये समझ आया मान्य? अभी क्लियर हुआ? Yes. करेक्ट, राइट? अभी मान्य, इफ आई शो यू द रेस्ट क्वेश्चंस, ओके? सी, फर्स्ट किया हमने, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ क्वेश्चन मान्य, इफ यू नोटिस फोर्थ क्वेश्चन में you have in figure 6.19, that means of course they are talking about this figure, इसमें भी मान्य वही चीजें हैं। DE जो है वो AC के पैरेलल दिया हुआ है, DF जो है वो AE के पैरेलल दिया हुआ है, और आपको ये प्रूव करना है मान्य, ओके? Okay. नंबर, देयर आर टोटल 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 मान्य। आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 खुद से ट्राई करना मान्य, ओके? और आप मुझे बताना कि कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व, ओके? यस, Okay. आप ट्राई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बस एक हिंट दे देती हूँ। इट सेज DE इज पैरेलल टू AC, राइट? करेक्ट? इट सेज DE is parallel to, sorry, DE not DF, I have marked DF by mistake. It says DE is parallel, see DE is parallel to AC, ये दिया हुआ है। तो ये पता है क्या दिया हुआ है? ये इस ट्राइंगल का दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल की जब बात करेंगे मान्या, तो आप थोड़े मोमेंट के लिए ये भूल जाना कि ये वाला लाइन गिवन भी है। Okay. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Okay. यस, अगर आप ये लाइन भूल जाओ तो आप बस जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है उसमें DE इज पैरेलल टू AC गिवन है, तो बीपीटी थ्योरम से मान्या आप बोल सकते हो कि BD जो है, BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन AC। करेक्ट? तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद आप वो ट्राइंगल को भूल जाना और आप ये देखना कि आपके पास अभी ये ट्राइंगल है ABE। तो इसके लिए आपको क्या भूलना होगा? इसके लिए आपको भूलना होगा कि ये दो लाइंस है हमारे पास, दिस लाइन और दिस लाइन, ये लाइन है ही नहीं,
ये सब कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है अभी, ABE। और इस ट्राइंगल में क्या पैरेलल गिवन है, DF इज पैरेलल टू AE। सो ये DF इज पैरेलल टू AE। सो अगर ये DF पैरेलल टू AE है तो ऑफ कोर्स BPT थ्योरम से अगेन हम लिख देंगे BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। और अगर आप पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को मान्य इक्वेट करोगे तो आप फिर से वही वाला केस देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, कि LHS आपस में सेम हो रहा है तो RHS आपस में सेम हो जाएंगे और ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। मान्या, यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? Yes. आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप ट्राई करना। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है मान्या, इन केस मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक का एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी मान्या, और वो वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी तो यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ठीक है। 1 2 हमने, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 10 अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, फिर मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी, आपको शेयर करूंगी, आप वो वीडियो अपने फ्री टाइम पे देखना और आप समझ जाना, ओके। नेक्स्ट क्लास में मान्या हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके, कोई और टॉपिक को रिवाइज करेंगे। विच Okay. टॉपिक दैट यू डिसाइड एंड यू लेट मी नो इन टुमारोज क्लास, ओके। Okay. अदरवाइज है ना, ज्योमेट्री तो हमने मतलब कोर्स स्टार्ट किया है, तो लेट्स जस्ट फिनिश क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश कर लेते हैं, ओके। Okay. ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।